So today we are starting the new topic, that is the dynamics of the non-uniform circular motion. Suppose the situation is as shown in the diagram. We are discussing the vertical circular loop. A particle is started at the lowermost point with any speed Vl at any arbitrary point at P, which is making angle theta. We have to calculate the tension at this point. So the first point, we have to calculate the tension at point P. We draw the FBD at the point P. We all know very well, here the weight will act mg. Here the tension. Component of the weight toward this side can be written as the mg cos theta. It means net centripetal force is written as the T minus mg cos theta, and centripetal force is mv square by r. So T minus mg cos theta equal to mv square by, suppose we say r is the radius of the circular loop. So tension at this point P can be written as the mg cos theta plus mv square upon r. This we have calculated the tension at this point P. So from this we can calculate one more thing, that where the tension is minimum. I hope it is visible to all of you. When theta is given at 180 degree, cos 180, all of you know that is minus 1. It means tension is the minimum at theta is 180 or at the highest point. And for completing the loop, for looping the loop, tension at the highest point, of course it is the minimum tension, this should be greater than equal to 0. Because if tension is 0, less than 0, we can say the string will sag and the particle will not able to complete the vertical circular motion. So one thing is very much clear to all of you. Tension is minimum at the highest point, and this minimum tension should be greater than equal to 0 for completing the loop. So if I put here this tension at the highest point, mg cos 180 degree plus m, velocity or speed at the highest point, this should be greater than equal to 0 for looping the loop. It means we cancel the m. Cos 180 we all know very well, that is minus 1. We calculate it. It means velocity speed at the highest point should be greater than equal to root rg. So one thing is clear. If we have to calculate the speed at the highest point for completing the vertical loop, we are getting the answer Vh is greater than equal to root rg. So this is the one of the thing. Now how we will calculate the speed at the lowermost point? If we apply conservation of energy at the lower point and the highest point, we can easily calculate the speed at the lowermost point for completing the loop. So we apply conservation of energy at lower point, conservation of energy at the highest point. What we are getting? Half m VL square. We are taking this is the reference level. So potential energy counted 0, and at highest point half m VH square plus mg into height. If radius is r, then r plus r, if it is 2r is the height, so we will say it is 2r. We cancelizing L, we cancelizing 2 also, we getting 2 here. So what is the equation? VL square equal to VH square plus 4 GR. It is given to us for completing the loop, VH should be greater than equal to root RG. We put here the VH is greater than root RG. I hope you can easily calculate VL is greater than root 5 RG. So one thing is clear to all of you. For completing the loop, speed at lowermost point should be greater than equal to root RG, and speed at the topmost point, highest point, should be greater than equal to root 5 RG. I hope this thing is very much clear to all of you. ये आप लोगों को समझ में आ गया हो. Now we have calculated speed at the lowermost point, and now we have to calculate the tension also at the lowermost point. I hope the equation is very much clear to all of you. T minus mg cos theta equal to mv square by r. If we are talking about the lowermost point, we all know
theta equal to 0 degree, and V can be written as VL. And what is the VL? It is given by root 5 Rg. So we put here, we will get the tension at the lowermost point, that is the maximum tension, it will be greater than equal to 6 mg. So in this way, we have calculated the maximum tension, we have calculated speed at the lowermost point, speed at the highest point. So again reminding, tension at the highest point greater than equal to 0 for completing the loop, speed at the highest point root Rg, speed at the lowermost point root 5 Rg, tension at the lowermost point greater than equal to 6 mg. These all values you are supposed to learn. Okay, now we move forward. So if we know velocity or speed at lowermost point, we can easily find out the speed at any point. Suppose I ask you, what is the speed at this point? This point is lowermost point, this is highest point, this is any point P. This can be taken B, horizontal position. So we apply the conservation of energy conservation. So total energy at point lowermost point must be total energy at point B. This is the reference level, potential energy 0, half m VL square at point B, half m VB square plus mg into R. We cancelize the m, we cancelize 2 also, here we get the 2, and all of you know what is the value of the VL? VL is greater than equal to root 5 Rg. We put here, so VB square equal to VL square minus 2gr, put the value of the VL here, speed at the B point should be greater than equal to root 3 Rg. यानी एक पॉइंट और मिल गया हमें जहाँ की हमें स्पीड पता चल गई. इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की स्पीड पता कर सकते हैं. अगर मुझे कोई बोले यहाँ पे मुझे टेंशन निकालनी बी पॉइंट पे, अगेन आई अप्लाई द सेम इक्वेशन, T minus mg cos theta equal to mv square by r. Now, when the particle is at point B, I hope it is visible to all of you. Theta is given at 90 degree, cos 90 is 0, and speed at the point B is given greater than root 3 Rg. So what I can say? Tension at the horizontal position or at the B point should be greater than equal to 3 mg for looping the loop. So we have taken 3 situations: lowermost point speed root 5 Rg, topmost root Rg, horizontal position root 3 Rg. Tension highest greater than equal to 0, tension lowermost point greater than equal to 6 mg, tension at the point B it is greater than equal to 3 mg. Now I will discuss with you the condition for oscillation or leaving the circle. Means आप किस स्पीड से पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे कि जो पार्टिकल है स्ट्रिंग है ये ऑसिलेट करे, या किस स्पीड से फेंकोगे पार्टिकल विल नॉट रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, एनीवेयर स्ट्रिंग विल स्लैक and it will leave the circular path. So for oscillation and for leaving the circle, for oscillation I think it is visible to all of you and you know, अगर यहाँ से मैंने पार्टिकल को स्पीड दी VL, यहाँ के आगे उसकी स्पीड होगी 0 पर टेंशन प्रेजेंट है, टेंशन प्रेजेंट है, स्पीड यहाँ 0 होगी तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, यहाँ से पार्टिकल वापस नीचे आएगा और ऑसिलेट करेगा. तो ऑसिलेशन मतलब जहाँ पे स्पीड 0 हो गई. और लीविंग द सर्किल, सर्किल कब छूटेगा? जब टेंशन खत्म हो जाए, स्ट्रिंग स्लैक हो जाए. तो लिविंग द सर्किल में हम लोग क्या सोचेंगे? स्पीड तो है बट टेंशन 0 हो गई. और ऑसिलेशन हम लोग क्या सोचेंगे? टेंशन तो है और स्पीड 0 हो गई. आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हो गए. फॉर ऑसिलेशन फॉर लिविंग द सर्किल के बारे में आप लोग क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे? अब हम वो हाइट निकालेंगे जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है. हाइट where velocity becomes 0. Suppose that height is h1. So suppose I say this height is h1. At this velocity or speed is 0. We apply the conservation of energy. At lowermost point the speed is VL. So total energy at lowermost point, total energy at point P. यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एल स्क्वायर
reference level, so potential energy is 0. Total energy, that is mg h1, and of course we are talking height where speed is 0, so v is 0. It means we can easily calculate h1 is given by vl square upon 2g. अगर इस हाइट पे स्पीड 0 है और टेंशन 0 नहीं है, ऑसिलेशन होना है, तो इस पार्टिकल वापस लौट के नीचे आएगा, क्योंकि जब तक टेंशन 0 नहीं होगी, स्ट्रिंग स्लेक नहीं होगी, और स्ट्रिंग स्लेक नहीं होगी, सर्कुलर मोशन मेंटेन रहेगा अपना। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गई। अब हम वो हाइट कैलकुलेट करेंगे h2 जहाँ पे टेंशन 0 है। पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, वो हाइट h1 जहाँ पे स्पीड 0 होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट टी पे मुझे टेंशन निकालनी है, मुझे फॉर्मूला पता है, t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। टी को तो 0 पुट कर दूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 0। अब v इस पॉइंट की स्पीड है, मैं इसको pp बोल देता हूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहले मुझे वैल्यूज पुट करनी है कॉस थीटा की। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये हाइट अगर आप h2 लेते हो तो बची हुई हाइट कितनी होगी, रेडियस माइनस h2, और ये हाइट कितनी होगी, रेडियस। कॉस थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है मेरी vl, तो अगर मैं लगाता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन है, टोटल एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट must be total energy at p point. What we can say, half m vl square, we will count only kinetic energy because this is the reference point, equal to half m vp square plus mg into h2. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो गया आपका इजीली, आपको 2 भी कॉमन लेके हटा दो, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटा दो, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई होप वी आर इजीली कैलकुलेटिंग Vp square is given by VL square minus 2GH2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हम क्या लिखेंगे इसको, mg cos थीटा क्या लिखोगे आप, r माइनस h2 अपॉन r प्लस m बाई r। Vp स्क्वायर क्या लिखोगे, VL स्क्वायर माइनस 2GH2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। लेट अस इरेज इट, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो अगेन वी सी, m तो कॉमन ले लो, आर भी कॉमन लो, इक्वेशन लिखो, जी आर जी माइनस जी एच टू प्लस वी एल स्क्वायर माइनस 2GH2 इक्वल टू 0। सो GH2 2GH2 3GH2 उधर चला जाएगा, क्या होगा, 3GH2 इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस आर जी या जी आर। H2 is written as VL square, this is plus GR upon H2 is 3G, so VL square plus GR upon 3G, ये आपकी वो हाइट आएगी जहाँ पे टेंशन 0 होगी। तो अभी तक हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, वो हम लिख लेते हैं। हाइट where tension is where speed is 0, फर्स्ट हाइट जहाँ हमने स्पीड 0 करी थी, हमारा आंसर क्या आया था, h1 इक्वल टू वी एल स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम वो हाइट निकाल रहे हैं h2 जहाँ पर टेंशन 0 आ गई थी ना, तो वो हाइट हमारी क्या आई थी, h2 इक्वल टू, आप अपनी कॉपी में देखोगे, वी एल स्क्वायर प्लस जी आर अपॉन 3g। अब हमें दोनों कंडीशन डिस्कस करनी। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, ओके। अब हम ऑसिलेशन क्या डिस्कस करेंगे, इट इज द पॉइंट वेयर स्पीड बिकम 0 बट टेंशन 0 नहीं होगी, यानी h1 पहले आ गई, h1 पहले आ गई, तो आप क्या लिखोगे फॉर ऑसिलेशन, h1 इज लेस देन h2, पुट ऑल द वैल्यूज, वी गेट VL स्क्वायर अपॉन 2G इज लेस देन VL स्क्वायर
प्लस जी आर अपॉन 3g, जी कैंसिल, 3vl स्क्वायर लेस देन 2vl स्क्वायर प्लस 2gr, यानी आपने इसको सोल्व किया, vl स्क्वायर लेस देन दैट इज 2gr और vl इज लेस देन रूट 2gr। अब देखो, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मेरी रूट 5gr थी या इससे ज्यादा थी तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो रहा था, लेकिन रूट 2gr या इससे कम है तो आप लोग क्या बोलोगे? ऑसिलेशन। ओके, रूट 0 से लेके रूट 2gr के बीच में कुछ भी स्पीड थी, ऑसिलेशन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फॉर लिविंग द सर्कल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे फॉर लिविंग द सर्कल। देखो, फॉर लिविंग द सर्कल, पार्टिकल चला चला चला, जहां टेंशन खत्म हो गई खत्म। अब यानी पहले हाइट आएगी h2, सीधी सी बात है, यानी आप क्या लिखोगे? h2 इज लेस देन h1, h2 इज लेस देन h1। तो हम इसको इरेज कर लें। अब हम वैल्यूज पुट करें, h2 की जगह लिखोगे pl स्क्वायर प्लस gr अपॉन 3g लेस देन h1 इज vl स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है जी, जी से जी तो कैंसिल हो गया, तो आप क्या लिखोगे जी? 2vl स्क्वायर प्लस 2gr लेस देन 3vl स्क्वायर। सोल्व करो जी, vl इज ग्रेटर देन रूट 2gr। ओके जी, अब आप कितने के एक्सपर्ट हो गए हो? देखो आप क्या क्या पॉइंट्स देखते हो वर्टिकल सर्कल में। अगर आपको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है, सिंपल पेंडुलम का थ्रेड है, एक बॉब लगा हुआ है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए रूट 5gr, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए रूट 2gr, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए? रूट 3gr। ठीक है, टेंशन की बात करो, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। तीसरी बात, नेक्स्ट बात, अगर मैं 0 से लेकर रूट 2gr तक स्पीड देता हूं, 0 से लेकर रूट 2gr तक स्पीड देता हूं, ऑसिलेशन कराऊंगा। रूट 2gr से ज्यादा देता हूं, रूट 5gr से कम देता हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा ओरिजिनल को क्रॉस तो कर लेगा। तो रूट 3gr से ज्यादा दे दी तो रूट 3gr से ज्यादा दे दी ओरिजिनल क्रॉस कर लेगा, तो रूट 2gr रूट 3gr के बीच में, रूट 2gr रूट 5gr के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर टेंशन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एंड पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, अब मैं आपसे एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड, आपने सिंपल पेंडुलम लिया, एक थ्रेड है, एक बॉब है। एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो जहां जाके पार्टिकल की स्पीड 0 हो गई, दैट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरी स्पीड है vl, तो p पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी जी? बार बार डिस्कस करूँ इस चीज आपसे, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से भी सोच सकते हो, आपकी जैसी इच्छा आप सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा जी? हाफ एम vl स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम vp स्क्वायर या v स्क्वायर मान लो जी, प्लस mg h2। ये हाइट को मैंने h2 ले लिया, h ले लो, क्या फर्क पड़ा, तो h ले लो। अब m से m कैंसिल, 2 यहां से हटा है, यहां से हटा है, तो यहां लग गया। ठीक है, अब स्पीड क्या हुई p पॉइंट पे? v स्क्वायर इक्वल टू vl स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखो जी, ये पूरे डिस्टेंस r, उसमें से ये डिस्टेंस कितनी होगी? r cos थीटा, तो मैं h को क्या लिखूंगा? r माइनस r cos थीटा, और अगर मैं r कॉमन ले लेता हूँ क्या हो गया? 1 माइनस cos थीटा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, v स्क्वायर इक्वल टू vl स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ एंगुलर एम्पलीट्यूड, इट इज दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एट विच स्पीड बिकम्स 0। तो चलो v को 0 पुट करो, अगर आप इसको 0 कर दोगे तो क्या लिखोगे? vl स्क्वायर इक्वल टू 2gr माइनस उधर चला गया और ये अंदर क्या आ गया? 2gr cos थीटा। ठीक है, vl स्क्वायर, ओके, हम इसको फिर सेट कर लें,
टू जी आर कॉस थीटा इक्वल टू टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन टू जी आर। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन टू जी आर। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी इस पॉइंट पे जाके, इस एंगल पे जाके पार्टिकल की स्पीड जीरो हो जाएगी। इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एंगल वेयर स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विल स्लैक, थीटा एट विच स्ट्रिंग विल स्लैक। ठीक है जी, ये टेंशन खत्म हो जाएगी। देखो इस पॉइंट पे टेंशन का लिखते हो जी आप, P माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी T इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। और इस पॉइंट पे वी क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। तो ये सब यहाँ पुट करो और टेंशन को जीरो कर दो, वो एंगल निकालना जहाँ टेंशन जीरो, ये तो हो गया जीरो। अब क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई आर, यहाँ पे लिखो वी एल स्क्वायर माइनस टू जी आर माइनस माइनस प्लस टू जी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, एम कैंसिल लेके काटो, क्या लिखोगे यहाँ से, आर जी कॉस थीटा प्लस वी एल स्क्वायर माइनस टू जी आर प्लस टू जी आर, आर जी की बात है, टू आर जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से थ्री जी आर हो गया ना, टू जी आर और आर जी थ्री जी आर। ठीक है जी, सो थ्री जी आर कॉस थीटा इक्वल टू टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे, कॉस थीटा इक्वल टू टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन थ्री जी आर। ओके, तो टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन थ्री जी आर, इस एंगल पर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगी, सिलेक्ट कर जाएगी। और टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन टू जी आर पे क्या हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा, पार्टिकल वापस वहां से लौटेगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हम लोग अलग अलग एंगल पर ले लेते हैं। जैसे पहला सिचुएशन में ले रहा हूं आपके सामने, व्हेन वी एल इक्वल टू रूट टू जी आर, तो व्हाट इज एंगुलर एम्पलीट्यूड एंड एट व्हाट एंगल द टेंशन विल बी जीरो। दोनों चीजें एक साथ ले लेते हैं। देखो आप क्या लिखोगे, एंगुलर एम्पलीट्यूड, सपोज दैट एंगल इज थीटा, यू विल से cos थीटा इक्वल टू टू जी एल माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी एल। यहाँ पे रेडियस आ रहा है तो आर ही ले लो। चलो अब यूएल की जगह रखोगे, ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है ना वीएल, क्या लिखोगे, टू जी आर जो है जीरो आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी होगी जी, पाई बाई टू। ओके, अब एंगल जहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए, स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाए, अल्फा इज दैट एंगल। फॉर्मूला क्या है, cos अल्फा इक्वल टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन थ्री जी आर। लेकिन यहाँ भी टू जी आर रखोगे तो ये टू जी आर कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू। यानी अगर आपने वी एल की वैल्यू रूट टू जी आर है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है रूट टू जी आर है, तो पार्टिकल का एंगुलर स्पेस, एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना हो गया, पाई बाई टू। और एंगल वेयर टेंशन विल बी जीरो, एंगल वेयर स्ट्रिंग विल स्लैक, वो भी कितना हो गया आपका, पाई बाई टू। सो आई थिंक वन थिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर। ओके, अब आगे देखते हैं इसको। ये सब कर लिया। चलो अब आपने कहा वीएल जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है ना, वीएल वो कितनी है तुम्हारी, रूट फोर जी आर, लाइक दिस। ये आपने कह दिया लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट फोर जी आर। सबसे पहले एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा निकालना है। क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू टू जी आर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू जी आर। वी स्क्वायर क्या रखोगे, फोर जी आर है ना, तो टू जी आर माइनस फोर जी आर कितना आ गया, माइनस टू जी आर अपॉन टू जी आर। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई जी, माइनस वन। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी जी, फाइव। ये तो मेरा एंगुलर एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ वह एंगल जहाँ पे मेरी स्ट्रिंग सेलेक्ट कर रही है। उस एंगल को कैसे निकालूंगा, देखो सपोज वो एंगल है मेरा अल्फा, जहाँ पे मेरी स्ट्रिंग सेलेक्ट कर रही है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, cos अल्फा इक्वल टू टू जी आर माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन थ्री जी आर। वी एल की जगह फोर जी आर लिख रहा हूँ जी, फोर जी आर नेगेटिव है जी, तो टू जी आर माइनस फोर जी आर कितना हो गया जी, माइनस टू जी आर अपॉन थ्री जी आर।
तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -2/3। ठीक है जी, cos अल्फा -2/3 अप्रोक्सीमेटली। ध्यान रखना आपको, दिस एंगल इज 131 डिग्री, है ना। यानी यहाँ पे कहीं पे स्ट्रिंग आएगी अप्रोक्सीमेटली 131 डिग्री पे। यहाँ पर जैसे टेंशन 0 हो गई, स्ट्रिंग सेलेक्ट कर गई, स्पीड तो है ना, स्पीड तो पाई पे जाके खत्म होगी। यहाँ पे स्पीड तो है पार्टिकल इस पॉइंट पे, स्पीड तो पाई पे जाके खत्म हो रही है, एंगुलर एम्पलीट्यूड पाई है। तो अगर स्पीड प्रेजेंट है लेकिन टेंशन खत्म होगी तो यहाँ से क्या चलेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ चल जाएगा इस तरह से। ओके, आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। अब हम ले रहे हैं सिचुएशन में लोअर मोस्ट स्पीड है √5 g। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड, जहाँ हमारे एंगुलर एम्पलीट्यूड जहाँ पे स्पीड 0 होगी वो एंगल देखना है ना। तो आप क्या लिखोगे, एंगल थीटा, सपोज क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू 2gl माइनस VL² अपॉन 2gl की जगह r लिखना, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, VL की जगह 5gr²। तो क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू 2gr माइनस 5gr माइनस 3gr अपॉन 2gr, कितना आ गया, -3/2। अब ध्यान दो, cos थीटा की वैल्यू -3/2 है, यानी ग्रेटर देन -1 है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। -1 से भाई मैं क्या हो सकती है, cos थीटा की वैल्यू +1 -1 के बीच में हो सकती है, -1.5 है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड है ही नहीं, स्पीड 0 हो ही नहीं सकती, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग किस एंगल पे कहाँ सेलेक्ट कर रही है उसके अपन बात करते हैं। देखो, तो मान लो एंगल अल्फा है, जहाँ पे टेंशन 0 हो जाए, स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाए, क्या लिखोगे, cos अल्फा इक्वल टू 2gr माइनस VL² अपॉन 3gr। ठीक है जी, अब 2gr माइनस VL² कितना हो गया, -3gr, VL की वैल्यू √5gr है, तो -3gr अपॉन 3gr कितना बच गया, cos अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, -1, -1 का मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट बात आई है, अगर आपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे √5gr स्पीड दिया, पार्टिकल चला सा, पार्टिकल से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर एम्पलीट्यूड 0 नहीं है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 नहीं है, स्पीड तो ही है लेकिन यहाँ पे टेंशन 0 है, लेकिन ड्यू टू स्पीड पार्टिकल थोड़ा सा और आगे खिसकेगा, टेंशन विल कम इनटू प्ले अगेन। ओके, तो मैंने सारा आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं, √2gr, √4gr, √5gr, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमने स्ट्रिंग कनेक्टेड पेंडुलम की बात करी थी ना, अब हम रोड की बात कर रहे हैं, ये रोड है। देखो जनरली सारी सिचुएशन वही रहेगी जो स्ट्रिंग पेंडुलम की थी। क्या थी सिचुएशन, आपने वहां क्या पढ़ा था, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है √5gr, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है √gr, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो गया, यही पढ़ा था। अब एक चीज वहां आपने पढ़ी थी, जब ये हो जाए आपका √4gr, ये आपने वहां पढ़ा था, तो जो आपका एंगुलर एम्पलीट्यूड था, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एक तो वो आपने कैलकुलेट किया था, क्या किया था, cos थीटा इक्वल टू 2gar माइनस VL² अपॉन 2gr। तो देखो ये कितना आ गया, cos थीटा की वैल्यू VL² की जगह 4gr रखोगे, 2gr माइनस 4gr माइनस 2gr माइनस 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, पाई या 180 डिग्री। ये पढ़ा था आपने वहां पर। फिर एक अपन ने वहां पढ़ा था टेंशन कहाँ 0 होगी, देखो टेंशन कहाँ 0 होगी ना, स्ट्रिंग कहाँ सिलेक्ट करेगी, स्ट्रिंग ने रोड है, ये सिलेक्ट कर नहीं सकती, सीधी सी बात है, और हम निकाल रहे हैं टेंशन कहाँ 0 होगी। तो आप क्या लिखोगे, दैट एंगल इज अल्फा, cos अल्फा इज 2gr माइनस VL² अपॉन 3gr। वैल्यू पुट करो जी, VL² में 4gr पुट करो, तो 2gr माइनस 4gr कितना बच गया, माइनस का 2gr, तो -2/3 हो गया जी, -2/3 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 131 डिग्री। ये हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था, जस्ट अ सेकेंड। तो अब क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझे, देखो अगर स्ट्रिंग है और बॉब लगा हुआ है और √4gr पे आपने फेंका लोअर मोस्ट पॉइंट से, तो आपको पता चल गया हॉरिजॉन्टल क्रॉस करेगा 131 डिग्री एंगल पे, स्ट्रिंग में टेंशन खत्म हो गई, स्ट्रिंग लूज हुई, प्रोजेक्टाइल चला गया। लेकिन रोड है 131 डिग्री पे, कोई टेंशन तो ऐसा थोड़ा रोड लूज हो जाएगी, रोड तो हार्ड ही रहेगी। तो क्या डिफरेंस हुआ, अगर √4gr रोड को दे दिया तो हमें पता है एंगुलर एम्पलीट्यूड पाई है, अब रोड में सिलेक्ट तो होना ही नहीं है,
यहाँ पे क्या इन सवालों में रूट 4GR देने पे भी रोड कंप्लीट रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, रोड विल रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि स्लैक तो होनी नहीं रोड। तो डिफरेंस क्या आ गया, जो पहले टेंशन इनवर्ड लग रही थी वो टेंशन आउटवर्ड लगने लग गई। अब स्ट्रिंग तो आउटवर्ड टेंशन लगाएगी नहीं ना, वो तो लगा ही नहीं सकती, रोड तो लगा सकती डायरेक्ट। तो जो टेंशन इनवर्ड थी वो टेंशन आउटवर्ड लग गई और रोड आपके ऊपर पहुंच गई टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और रूट 4GR से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड हुई, सर्कल कंप्लीट हो गई। गेटिंग माय पॉइंट। वहां पे रूट 5GR चाहिए थी, डिफरेंस समझना, वहां पे रूट 5GR चाहिए थी, यहाँ पे रूट 4GR से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, आपका काम हो गया, क्योंकि यहाँ पे रोड में स्लैक नहीं आ रहा है इस एंगल। ओके, हम आगे चलता हूं। अच्छा, एक सवाल लेते हैं हम लोग। दिस इज अ स्विंग, आपका फ्रेंड है पीछे से आपको फोर्स लगा रहा है। एट व्हाट लोकेशन देयर इज चांस ऑफ ब्रेकिंग। अब फील करो तो आपको क्लियर फील हो रहा होगा। सबसे हाईएस्ट टेंशन का लोअर मोस्ट पॉइंट पे तो है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। तो टूटने के चांस कहाँ होंगे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे होंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, लोअर पोजीशन। ओके, अपर पे तो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल पे क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg। लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। ये सब कुछ आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चले। कॉनिकल पेंडुलम हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार वापस डिस्कस कर। देखो, अगर आप कहते हैं यहाँ पे टेंशन है टी, इसी कंपोनेंट ले लो, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, वेट mg। अगर आप इस फ्रेम में बैठ के देखोगे सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स क्या लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी बैलेंसिंग की, टी साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर और टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड करो, टेन थीटा कितना हो गया, m से m कैंसिल हो गया ना, तो कितना हो गया देखो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन rg हो गया टेन थीटा, ठीक है जी। अभी क्या पूछ रहा जी, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग लेवल, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड। चलो एंगुलर स्पीड निकालो, ओमेगा क्या हो गया, रूट rg टेन थीटा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब हम एक एनसीईआरटी का अच्छा सवाल डिस्कस कर रहे हैं आपसे। A thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega. Show that the small bead on the wire loop remain at lower point. ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया सवाल का, ठीक है जी। And what is the angle made by the radius vector joining the center to the bead in the vertical downward direction? ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। Suppose this is the position। अब आप इसी फ्रेम में बैठ कर देख रहे हो, तो देखो ये तो इसका सर्कुलर मोशन हो गया रोटेटल पाथ पे, इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर मान ली, सेंटर ज्वाइन किया, ये रेडियस कैपिटल आर मान ली, ये एंगल है मेरा थीटा। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ, वेट लगा रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल लग गया, ये मेरा वेट mg लग गया। अब नॉर्मल की कंपोनेंट ले लूँ, ये कंपोनेंट हो गया मेरा n cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया मेरा n sin थीटा, ठीक है जी। अब n cos थीटा तो किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को mg को। n sin थीटा इनवर्ड फोर्स है, बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर इसकी रेडियस है। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है। आई थिंक वी कैन इजीली से साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर क्या हो गया, कैपिटल आर साइन थीटा। तो ये वैल्यू आप पुट करो, n साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर क्या लिखोगे, कैपिटल आर साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल, n की जगह क्या है आपका m ओमेगा स्क्वायर। अब ये n उठा के आप यहाँ रख दो, है ना। तो आप क्या लिखोगे, m ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा इक्वल टू mg, m से m कैंसिल। अब आप देखो क्या इक्वेशन बनी आपकी, कोस थीटा इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। अब हम लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करें, लोअर मोस्ट पॉइंट थीटा 0, कोस 0 कितना हो गया 1। तो आपकी क्या कंडीशन बनेगी, g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा इक्वल टू रूट जी बाई आर। देखो चेक करो, आ गया ना, लेस देन इक्वल रूट जी बाई आर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द एंगल।
अब देखो एंगल का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो आपका क्या आया, cos थीटा इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जी क्या लिखोगे 2g अपॉन r इंटू आर से आर कैंसिल, जी से कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू होगी 1/2, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ओके सॉरी, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ये अपना पूरा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी इनसाइड द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। अगर आप लेफ्ट एनिमेशन देखो, आप एक कार लेके आ रहे हो जिसका मास है m, जिसकी स्पीड है u, हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक से अंदर एंट्री कर रहा है और वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है। अब इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू इन द एनिमेशन, इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा लग रही है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज चेंजिंग बिकॉज इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब जब ऊपर जाते हो और फिर नीचे आते हो तो आपको जो फील होता है वेट में चेंज, आपको वेटलेसनेस हेवीनेस फील होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है? देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो चेंज होगा नहीं, वो तो mg यहाँ भी है वहां भी है, ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है हर जगह, तो अल्टीमेटली नॉर्मल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ये बात आपको फील हो गई। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स कहाँ है तो आप लोग क्या बोलोगे बॉटम पे, और मिनिमम क्या होगा अभी भी पढ़ा हमने कहाँ होगा टॉप पे, और डायरेक्टली भी सोच सकते हो मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स बॉटम पे क्यों होगा और mg से ज्यादा ही क्यों होगा। दूसरी बात ये भी सोचोगे क्योंकि नॉर्मल फोर्स जब बॉटम पे mg से ज्यादा होगा तभी तो नेट फोर्स इनवर्ट होगा, तभी तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा। ये बात आपको फील हो गई? चलो तो हम आगे चलते हैं लाइक दिस। अब हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बॉडी when it is at angular displacement theta from the initial bottommost point of the track। आपको यहाँ पे स्पीड निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितनी u है, ये vl है, कुछ भी मान लो, v दे रखा है, u मानना पड़ेगा ना, ये हाइट में h मान लेता हूँ। अब इस पॉइंट को मैं a पॉइंट बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं b पॉइंट बोलता हूँ। सो वी अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी एट a मस्ट बी टोटल एनर्जी एट b, a को मैं रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ, तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा a पे हाफ m u स्क्वायर, b पे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर जो मुझे निकालना है, प्लस mg इंटू h। अब ये डिस्टेंस है पूरी r और ये डिस्टेंस कितनी है r cos थीटा, तो यहां से h की वैल्यू कितनी होगी r माइनस r cos थीटा, m से m कैंसिल, 2 को भी कैंसिल करो, क्या मिल गया आपको u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh, यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh की जगह क्या लिखोगे r 1 माइनस cos थीटा, और v निकालना कितना हो गया रूट u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो फिर आगे देखो, अच्छा अब हमें नॉर्मल डायरेक्शन निकालनी है इस पॉइंट पे, है ना। तो नॉर्मल डायरेक्शन ये लगती है जिसको आप टेंशन बोलते हो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे इक्वेशन n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस था उधर लगे प्लस हो गया, प्लस एम बाई आर, वी स्क्वायर क्या लिखोगे यू स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 2gr cos थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई आर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2mg और आर से आर कैंसिल, तो फिर ये आ गया प्लस 2mg cos थीटा, है ना। तो नॉर्मल डायरेक्शन कितनी है चेक करो, m बाई आर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा, ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। आगे देखो, अब आपसे कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करना है। अब स्ट्रिंग पेंडुलम, रोड पेंडुलम सिचुएशन याद करो, जब आपकी वैल्यू यू की वैल्यू रूट 2gr थी तो वो कहां तक पहुंच पा रहा था, वो पॉइंट आप मार्क करो सर के, देखो रूट 2gr लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पता चल जाएगा यहाँ पे।
ये रेफरेंस पॉइंट ले लो, एंड आर्बिट्री पॉइंट भी ले लो। आपको पता नहीं कौन सी हाइट, आर्बिट्री पॉइंट ले लिया आपने तो। देखो, तो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी टोटल एनर्जी एट बी। रेफरेंस पॉइंट है तो क्या लिखोगे, हाफ एम यू स्क्वायर। अब अपन हमारे मैक्सिमम कहां तक रीच करेगा, इसका वहां पे स्पीड 0 हो गई, एम जी एच लिख लो। अब हाफ एम यू स्क्वायर जगह क्या लिखोगे, 2gr इक्वल टू एम जी एच। एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एच की वैल्यू आर। यानी जो हाइट आ रही है वर्टिकल, ये आर आ रही है, तो पार्टिकल यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से आपकी कार यहाँ गई और पार्टिकल बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा और यहाँ से वापस रिटर्न मार जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पे जाके। फील हो गया बात? ठीक है। अब रूट 4gr वाली बात डिस्कस करता हूँ। याद करो, रूट 4gr पे क्या हो रहा था, कोस इनवर्स -2/3 पे क्या हो रहा था, सिलेक्ट कर रहा था स्ट्रिंग। तो आप कार्ड लेके आ रहे हो, कोस इनवर्स -2/3 हुआ, ये सपोज कोस इनवर्स -2/3 131 डिग्री एंगल हो गया। यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट लूज हो गया, तो आपकी जो कार है, बाइक है, प्रोजेक्टाइल पाथ चलेगी, वापस ग्राउंड पे आ जाएगी। ओके, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया ना, ये तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया, इट विल लीव द सर्किल, सीधी सी बात है। तो ये एक सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट लेना हम लोग, व्हेन यू इक्वल टू रूट, आपको पता है रूट 5gr हो गया, वर्टिकल टॉप मोस्ट हाइट पर पहुंच जाएगा पार्टिकल। मार्क करना सर्किल पे, ये मार्क कर दिया, ये पॉइंट है टॉप मोस्ट पर, तो बॉडी विल रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट। और यहाँ पे चलने के बाद उसकी स्पीड रूट gr है, तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, सीधी सी बात है। सो बॉडी विल कंप्लीट द सर्किल। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली इसके अंदर। अब एक सवाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक राइडर है साहब, बाइक चलाता हुआ रहा है, टोटल मास राइडर का, उसका बाइक का कितना, 420 किलोग्राम, ठीक है। स्पीड दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड। व्हेन इनिशियली एंटरिंग द लूप की रेडियस है, व्हाट इज नॉर्मल फॉर द राइडर एट द टॉप, यहाँ पे बताना। तो टॉप पे एफबीडी बना ले पहले, तो वेट तो में से नीचे लगेगा, बोल ही रखा है ना। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी नीचे लगेगा टुवर्ड द सेंटर, ये टॉप पॉइंट की सिचुएशन होगी, और ये इधर भाग रहा है, इसकी स्पीड यहाँ भी होगी। तो व्हाट इज द नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी विल से N प्लस W, दिस मस्ट बी mv स्क्वायर बाई r। ओके, आपको नॉर्मल फोर्स N निकालना है, N कितना हो गया आपके लिए, mv स्क्वायर बाई r माइनस W। अब W में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, मास इंटू ग्रेविटी। मास दे रखा 420, ग्रेविटी आपने 10 ले लिया, यहाँ भी मास ले लिया आपने 420, रेडियस आपने ले ली 7.2 7.5। अब v आपको कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे v है 20, यहाँ पे v है 20, इस पॉइंट पे v निकाल लो, काम हो गया। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट द फर्स्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी एट द थर्ड लोकेशन। रेफरेंस लेवल है तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की लोअर मोस्ट पॉइंट, एंड उस पॉइंट पे लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी आपको कैलकुलेट करके यहाँ रखोगे, एंड प्लस एम जी इंटू 2r, बिकॉज r प्लस r 2r हाइट हो गई, ठीक है। एम से एम कैंसिल, 2 यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो यहाँ 2 आ गया, 2 2 से 4 हो गया। इक्वेशन क्या बन गई, वी एल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4gr। वी एल कितना दे रखा आपको 20, ठीक है जी। रेडियस दे रखी है, ग्रेविटी पता है, वी निकल जाएगा, सब कुछ वैल्यू आउटपुट करोगे, आपका फाइनल आंसर आएगा जो मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1800 न्यूटन। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट बता दिया। अब इस सवाल में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड द ट्यूब। अब एक ट्यूब में आप कार ड्राइव कर रहे हैं ना, कुछ भी मास एम है, स्पीड लोअर मोस्ट पॉइंट पे यू दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्पीड एट पॉइंट बी व्हिच इज हैविंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, आई थिंक अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। डायरेक्टली क्या लिखोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा, यानी आपको क्या आ गया, v इक्वल टू रूट यू स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये बात सबको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं रूट 2gr से रूट 5gr की सारी बातें कर लेता हूँ। अगर मैं पहली बात बोलूं, इस पॉइंट पे मेरा u है वो मान लो ग्रेटर देन रूट 2gr है। अब आप लोग खुद सोचो, स्ट्रिंग में क्या हो रहा था,
एक बॉब था, कनेक्टेड था, रूट 2GR था, तो कहां तक जा पा रहा था, क्या हो रहा था? अब आप खुद सोचो इस चीज को। देखो बॉडी पक्का लोअर हाफ रीजन क्रॉस कर जाएगी, लोअर हाफ रीजन क्रॉस करके अपर हाफ में जाएगी। अब रूट 2GR से ज्यादा, रूट 5GR से कम है ना, तो रूट 2GR से ज्यादा है, लोअर हाफ रीजन क्रॉस करके अपर हाफ में चलेगी। अपर हाफ में कहीं ना कहीं ऐसी लोकेशन आएगी जहां पे इसका नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, और जहां पे नॉर्मल फोर्स 0 हो गया वहां पे आउटर वॉल से कांटेक्ट खत्म हो गया, फटाक से आपकी कार नीचे वाली वॉल पे आ जाएगी, ट्यूब पे, और नीचे वाली वॉल पे आ जाएगी तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इवन स्पीड इज लेस देन रूट 5GR, तब भी आपका वर्टिकल सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से पहली बात आपको क्लियर हो गई। जैसे अगर मैं कहता हूँ u इज गिवन बाय रूट 4GR, अब आपको पता है रूट 4GR, तो नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ 0 होनी है, cos इनवर्स 2/3 पे 0 होनी है। ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपकी नॉर्मल डायरेक्शन cos इनवर्स -2/3 पे नॉर्मल डायरेक्शन 0 होनी है, ठीक है। और एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना पाई, यानी एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम यहाँ पहुंच सकता है। तो cos इनवर्स -2/3 पे यानी 131 डिग्री पे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 0 हो गई, तो बॉडी फटाफट उसी मोमेंट पे नीचे वाली वॉल पे आ गई। अब नॉर्मल फोर्स आउटवर्ड लगने लग गया, एंड दिस नॉर्मल फोर्स इज सफिशिएंट, मोशन था ही, तो रूट 4GR पे क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, बिकॉज स्लैग की कोई कंडीशन ही नहीं है, फॉल की कोई कंडीशन नहीं है, जैसे ही गिरेगी नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, मोशन है, स्पीड तो 0 हुई नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी पार्टिकल, ठीक है। और रूट 4GR से ज्यादा जैसे स्पीड दोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट क्लोज, वहां पे क्रॉस कर जाएगा और पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला लॉजिक भी आपको क्लियर हो गया। तो देखो मैंने सारे लॉजिक एक एक करके आपको सारे बता दिए। स्ट्रिंग पेंडुलम, रोड पेंडुलम, कार इन वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक ओनली एक ही वॉल है, कार इन वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक जब दो वॉल है यानी ट्यूब के अंदर चल रही है, ये सारे लॉजिक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आउटसाइड द ट्रैक की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, यू स्पीड से फेंका आपने। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं एट थीटा व्हाट इज द स्पीड व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट पी, इस पॉइंट को पी ले लेता हूँ, यहाँ कितनी स्पीड होगी, स्पीड मान लेता हूँ v है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नो वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए पॉइंट पी, तो टोटल एनर्जी एट पी मस्ट बी टोटल एनर्जी एट ए, ठीक है जी। ए पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस लेवल लेता हूँ तो ए पे क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैंने अब नीचे आया हूँ, एच हाइट नीचे आया हूँ, देखो तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है जी। एम तो मेरा कैंसिल हो गया, टू भी मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ टू लग गया, तो क्या इक्वेशन बनेगी -2gh प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है जी। अब h कितना हो गया, ये टोटल हाइट आपको पता है r है, उसमें ये हाइट कितनी चलेगी r cos थीटा, तो h की जगह क्या लिखोगे r माइनस r cos थीटा, यानी क्या लिखोगे r 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ से क्या आपकी इक्वेशन आएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h उधर जाएगा ना, h की वैल्यू पुट करो और v का क्या लिखोगे रूट यू स्क्वायर प्लस 2gr 1 माइनस cos थीटा, ये आपका आ गया स्पीड एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा अगर आपसे पूछे कि कैलकुलेट नॉर्मल डायरेक्शन एट दिस पॉइंट भी, इसमें नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ लगेगी, देखो सर अब पहले इसका एफबीडी बनाओ, यहाँ तो लग गया वेट mg, mg का इधर कंपोनेंट लगा दिया mg cos थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन आपको पता है लाइक दिस, स्पीड इधर है पार्टिकल की, तो नेट इनवर्ट फोर्स कितना हो गया mg cos थीटा माइनस n, दिस इज रिस्पांसिबल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r। आपको नॉर्मल डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करो, तो आप क्या लिखोगे mg cos थीटा माइनस n m बाई आर, वी स्क्वायर ने क्या लिखा यू स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr cos थीटा। थोड़ा जगह बनाते हैं, देखो अब इसको सोल्व करना है ना, नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है, एन उधर ले जाओ, ये आपका mg cos थीटा और देखो r से r गया तो -2 mg cos थीटा, एन तो इधर आ ही गया था, ये उधर जा रहा है प्लस हो गया, तो देखो ये मिल गया आपका 3 mg cos थीटा, ठीक है जी। उसका ये सब नेगेटिव में है ना, m बाई आर यू स्क्वायर और ये भी नेगेटिव आ गया, r से r गया -2 mg,
तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 3mg cos थीटा माइनस m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2mg। ओके, यहाँ तक आपने चेक कर लिया। अब इसमें आपको वो एंगल निकालना है जहां पे बॉडी विल लूज द कांटेक्ट विद द वॉल और यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन चला जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो बॉडी जैसे कांटेक्ट छोड़ेगी इन नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दो और वो एंगल मान लिया मैंने अल्फा है, जिस एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रही है, और वहां से जैसे निकलेगी कार और प्रोजेक्टाइल चली जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 3mg cos अल्फा, ये सब उधर जाके प्लस हो गए m बाई आर यू स्क्वायर प्लस 2mg, जो कैंसिल हो रहा है वो कट करो, m कैंसिल हो रहा है सब। ठीक है जी, तो आपने क्या कैलकुलेट किया, cos अल्फा इक्वल टू, अब इसको हम सोल्व करते हैं ना, यू स्क्वायर प्लस 2rg और एक ये आर इधर आ गया तो कितना आ गया 3rg, तो यू स्क्वायर प्लस 2rg अपॉन 3rg, ये cos अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स समथिंग, तो अल्फा क्या हो गया आपका cos इनवर्स यू स्क्वायर प्लस 2rg अपॉन 3rg। अब देखो हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम ले लेते हैं 5.38 है ना। You may have seen a circus, a motorcycle is driving in a vertical loop. ठीक है जी, hollow spectacle the chamber with the holes so the spectacle is lost. ठीक है, explain clearly why the motorcyclist does not drop down when he is at the topmost point with no support from the below. And ये तो first part है सवाल का ना, what is the minimum speed required at the uppermost point to perform the vertical circular loop if the radius is this. ठीक है जी, देखो आप कार लेके आ रहे हो, बाइक लेके आ रहे हो ना, मोटरसाइकिल सॉरी कार ने बाइक लेके आ रहे हो मोटरसाइकिल। ठीक है जी, यहाँ पे हो और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, यहाँ पे एफबीडी बनाओ, वेट डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड, ये आपकी स्पीड हो गई। तो पहला सवाल है व्हाई द मोटरसाइकिल डज नॉट ड्रॉप डाउन, बिकॉज दिस वेट प्लस नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आप क्या लिखोगे, mg प्लस n इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है सब। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टॉप मोस्ट पॉइंट, रूट rg होता है, आपको बताइए टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल सर्कुलर लूप में। द रेडियस ऑफ द चेंबर इज 25 मीटर। अगर मिनिमम स्पीड निकालनी है यानी टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच गए, तो एक क्रिटिकल बात कर लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दो। तो जैसे इसको आप जीरो करोगे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, m से m कट गया, v शुड बी इक्वल टू रूट rg। तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, रूट rg, जो आप जानते हो वर्टिकल सर्कुलर में। r की वैल्यू पुट करो 25, ग्रेविटी पुट करो 10, कर लिया ना आपने, तो कितना हो गया v इक्वल टू रूट 250 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सोल्व कर लेना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो हमारी एनसीईआरटी वाली आ गई जो अपन ने थोड़ी देर पहले करी थी। ये हमें एंगल थीटा निकालना है। चलो जी एफबीडी बनाओ, इसी पे बैठ जाओ, इसी पे बैठ जाओ, शैडो फोर्स लगाओगे और ये एक सर्किल बन रहा है, जिस सर्किल की आपने रेडियस r लेनी है। फोर्सेस शो करो, mg लग रहा डाउनवर्ड, इधर लग रही नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल है थीटा, n का ये कंपोनेंट हो गया n cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा। इक्वेशन क्या लिखोगे, n sin थीटा प्रोवाइडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर बट रेडियस कितनी r, नॉट द कैपिटल R, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक कर सकते हो आप लोग। n cos थीटा कितना हो गया आपका mg, दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर r g। सवाल में रेडियस ऑफ द लूप दे रखा है कैपिटल R, यहाँ पे लगाओ लॉजिक, ये आपका कैपिटल R है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R फॉर्म में रखो, tan थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन g r साइन थीटा। अब ये tan थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, फाइनली आपको क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g cos थीटा इक्वल टू 1। इट मींस cos थीटा इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। ओके, हो गया आपका यहां तक। ओके, तो ये आपका लास्ट था। तो इस सेगमेंट में मैंने डिस्कस किया आपसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, थ्रेड बॉब कैसे कनेक्टेड है तो क्या होगा, रोड बॉब कनेक्टेड क्या होगा,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप चल रहे हो तो क्या होगा, है ना, ट्यूब में चल रहे हो तो आप क्या होगा, और स्फीयर के बाहर से किसी चीज को प्रोजेक्ट करोगे तो कहां से प्रोजेक्टेड मोशन हो जाएगा, कहां से आपकी नॉर्मल रिएक्शन शुरू हो जाएगी, ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए. तो यू विल लर्न एंड यू विल रिवाइज. ओके, ऑल द बेस्ट.